بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر جی آج ہمارا چیپٹر نمبر 1 کا 3rd لیکچر ہے اور ٹارگٹ یہ ہے کہ ایک شروع سے ریکیپ دے دوں کہ جو پڑھا ہے اب تک وہ کم سے کم آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلے ہم نے میرے ساتھ ساتھ چلیے گا، جو چیز میں آپ کو آلریڈی پڑھا چکا ہوں اس میں تو کم سے کم آپ لوگ ساتھ ساتھ مجھے جواب دیں، فیڈ بیک دیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کتنا کا آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔ سر جی سب سے پہلی بات یہ کہ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس بنیادی طور پہ وہ کنٹریبیوشن ہے جو عوام کرتی ہے حکومت کو تاکہ ملک کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے۔ یس اور نو؟ اچھا، جب ہم نے یہ والی بات کر لی تو اگلے نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس کا مقصد کیا ہے، آبجیکٹو آف ٹیکسیشن کیا ہے؟ سب سے میجر آبجیکٹو تو کیا ہے؟ ریونیو۔ ہاں، اس کے علاوہ ٹیکس کو استعمال کیا جاتا ہے امپلیمنٹیشن آف پالیسیز کے لیے بھی اور فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے لیے، یعنی امیروں سے پیسہ اکٹھا کر کے غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے بھی۔ سر جی جب ہم بات کرتے ہیں نان ریونیو آبجیکٹیوز کی تو پھر اس میں ہم کہتے ہیں کہ ٹیکسیشن جو ہے وہ اس کو ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ کو اچیو کریں، ٹو اچیو سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ۔ دوسرے نمبر پہ ٹو اسٹرینتھن ویک انٹرپرائزز بائی گرانٹنگ دیم ٹیکس ایگزیمپشن اور ادر کنڈیشن اور انسینٹیو فار گروتھ۔ سر یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے، ویک انٹرپرائز کو اسٹرینتھن کرنا کیسے؟ by granting them tax exemption اور other condition اور incentive for growth۔ سر جی کمزور انٹرپرائز کو اسٹرینتھن کیسے کریں گے؟ ٹیکس معاف کر کے یا ٹیکس کم کر کے۔ اپنی لوکل انڈسٹری کو بچائیں گے کیسے؟ امپورٹ پہ ٹیکس بڑھا کے۔ سر جی چوتھی بات کیا تھی؟ ٹریڈ نیگوشیشن ود ادر کنٹریز میں ٹیکس کو بارگیننگ ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم بڈز ون کر سکیں، آرڈر ون کر سکیں۔ انفلیشن کے ایفیکٹ کو کاؤنٹر کریں گے، جتنی اماؤنٹ سے قیمت بڑھے گی اتنی اماؤنٹ سے ٹیکس کیا کر دیں گے؟ کم کر دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات تھی ٹو ریڈیوس انیکوالٹیز ان دا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ۔ ویلتھ میں اگر کوئی انیکوالٹیز ہیں یعنی فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو اچیو کریں گے، اور اگر ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن میں انیکوالٹی ہے تو اس کو کم کریں گے ٹیکس لاگو کر کے۔ کیسے؟ امیر آدمی پہ زیادہ ٹیکس لگائیں گے اور امیر آدمی سے ٹیکس کلیکٹ کر کے غریب پر خرچ کریں گے۔ پھر اس کے بعد آگے ٹو پروموٹ سائنس اینڈ انوینشن، فائنینس ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز اور مینٹین اینڈ امپروو ایفیشنسی آف لوکل فورسز۔ سر جی سائنس اور انوینشن، فائنینشیل ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز اور ایفیشنسی آف لوکل فورس کو امپروو کرنے کے لیے ٹیکس کے ٹول کو استعمال کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ جہاں پر گورنمنٹ چاہتی ہے کسی چیز کو انکریج کرنا وہاں پہ ٹیکس کم کر دیتے ہیں یا ٹیکس معاف کر دیتے ہیں۔ جہاں پہ گورنمنٹ چاہتی ہے کسی چیز کو ڈسکریج کرنا وہاں پہ ٹیکس لگا دیں گے یا ٹیکس بڑھا دیں گے۔ سر جی پرائس ڈسکریمنیشن کو ایلیمینیٹ کیسے کریں گے؟ جہاں پر پرائس زیادہ ہے تو جتنی پرائس زیادہ ہے اتنا ٹیکس کم کر دیں گے۔ سر جی انڈیزائریبل سیکٹر جیسے سگریٹ، پان، گٹکا وغیرہ جو ہے اس پر کیا کریں گے؟ ہیوی ٹیکسز لگائیں گے تاکہ اس کو ڈسکریج کیا جا سکے۔ اور لاسٹ ہے فار ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی، اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے۔ اکانومی کو کیسے ڈاکیومنٹ کریں گے؟ بینک جو ٹرانزیکشن کرنی ہے بینکنگ چینل کے ذریعے کرو، جو ٹرانزیکشن کرنی ہے بینکنگ چینل کے ذریعے کرو تاکہ اکانومی ڈاکیومنٹ ہو، تاکہ بینک سٹیٹمنٹ کے اندر سارا کچھ آ جائے اور کیش میں ٹرانزیکشن کو ڈسکریج کیا جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی جان اگر ٹرانزیکشن کیش میں کی تو ٹیکس والے اس کو انکم ٹریٹ کر کے اس پہ ٹیکس لگا دیں گے۔ اس اصول کا اور اس قانون کو لاگو کرنے کا اصل مقصد ہے ہی اصل میں ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی۔ لو سر اگر یہ بات ساری سمجھ آ گئی تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور اگلی بات کرتے ہیں ٹو انکریج ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ آپ ٹیکس کریڈٹ دیں گے،
टैक्स में कमी करेंगे, क्यों? रिसर्च और डेवलपमेंट को एनकरेज करने के हवाले से। सर जी ये सारी बातें थी जो मैंने आपको पढ़ाई थी, एक बार परसों पढ़ाई हैं, कल भी बताई हैं, जल्दी से एक बार रीड करें फिर मैं आगे चलता हूँ। पहुँच कीजिए जी सर जी। उसके बाद हमने कहा था टैक्स डेवलपमेंट के तौर पर, डेवलपमेंट मुल्क की डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। मीन ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पर जो मीन्स है इसका मतलब असल में जरिया। डेवलपमेंट का जरिया कैसे बन सकता है कि जनाब किसी भी एक अंडर डेवलप्ड जगह को इकोनॉमिक जोन या टैक्स फ्री जोन करार दे दिया जाए और बिजनेसमैन को कहा जाए अगर वो फैक्ट्री उस जगह पर लगाएं, अगर वो फैक्ट्रियां उस जगह पर लगाएंगे तो उन्हें क्या दिया जाएगा? इंसेंटिव। उन्हें टैक्स का इंसेंटिव दिया जाएगा। इससे क्या करेंगे? बिजनेसमैन वहां पर इंडस्ट्रीज लगाएंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो उस अंडर डेवलप्ड जगह पर क्या चीज आ जाएगी? सर जी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ओवरऑल प्रोस्पेरिटी मिलेगी। अमीर आदमी पे ज़्यादा टैक्स लगाना, गरीब आदमी पे कम टैक्स लगाना, पैसा इकट्ठा करना, मुल्क के डेवलपमेंट पर खर्च करना। सर जी लग्जरी आइटम पे टैक्स ज़्यादा लगाना, लग्जरी आइटम की इंपोर्ट पर, और अपने मुल्क में जो आइटम बन रही है अगर उसी को इंपोर्ट किया जाए तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगाना। ये सर हाई कस्टम ड्यूटी लगाएं तो ये भी ज़रिया बनता है डेवलपमेंट का। टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटी एंड डोनेशन टू प्रमोट वेलफेयर एक्टिविटीज़। सर जी टैक्स क्रेडिट मिल रहा है चैरिटी या डोनेशन टू प्रमोट वेलफेयर एक्टिविटीज़, वेलफेयर एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए। सर जी जो इदारा वेलफेयर एक्टिविटी कर रहा है उसको टैक्स एग्जेम्प्ट है। जो बंदा ऐसे इदारे को जो वेलफेयर एक्टिविटी कर रहा है डोनेशन देता है उसको क्या मिलता है? टैक्स क्रेडिट मिलता है, यानी टैक्स में कमी मिलती है। और एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट्स पर टैक्स इंसेंटिव्स देना। यहाँ पर आपने देखा था मोहम्मद अली इंसेंटिव ही था वर्ड या एग्जेम्पशन था? हाँ तो सर उसको ठीक करना था ना आपने। लो सर डन हो गया सर जी। फिर उसके बाद मैंने आपको एडम स्मिथ की बात बताई थी और मैंने कहा था भाईजान एडम स्मिथ ने तो 4 बातें की थी। पहली बात थी सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का क्या मतलब है? टैक्स लायबिलिटी शुड बी क्लियर एंड सर्टेन। और फिर उसके बाद था कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट क्या था? टैक्सेस शुड बी कलेक्टेड एट अ टाइम एंड इन अ मैनर कन्वीनियंट फॉर टैक्स पेयर। उसने कहा था टैक्सेस को कलेक्ट किया जाएगा उस टाइम पर और उस मैनर में, इस तरह से टैक्स को कलेक्ट किया जाए और इस वक्त किया जाए जो कि टैक्स पेयर के लिए कन्वीनियंट हो। उसके बाद आगे थे इक्वालिटी। टैक्स पेमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू इनकम एंड अप्लाइड इक्वली टू ऑल कंसर्न्ड एरियाज। और उसके बाद आ गया था इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन। इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन में उसने कहा था टैक्सेस शुड नॉट बी एक्सपेंसिव टू कलेक्ट एंड शुड नॉट डिस्करेज बिजनेस। टैक्सेस इतने महंगे नहीं होने चाहिए कि उसको कलेक्ट करना ही डिस्करेज हो जाए या बिजनेस ही क्या हो जाए, एंड शुड नॉट डिस्करेज बिजनेस, या बिजनेस डिस्करेज हो जाए। सर जी ये सारी बातें एडम स्मिथ की थी। मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल्स देके ये वाली बात समझा दी थी। और फिर उसके बाद हमने आगे बात की थी प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, लेवी ऑफ टैक्स में सबसे पहले बेनिफिट प्रिंसिपल की। और बेनिफिट प्रिंसिपल में मैंने क्या बताया था? बेनिफिट प्रिंसिपल में मैंने बताया था जिसकी जो जितना ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से वो उतना ज़्यादा टैक्स देगा। और एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल में क्या सॉरी जी, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल में क्या बताया था? जिसकी जितनी हैसियत है उसको उतना ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल के बारे में क्या बताया था? फिक्स परसेंटेज लग जाएगी, फिक्स परसेंटेज लग जाएगी हर तरह की इनकम वाले बंदे पर, तो ऑटोमेटिकली अमीर बंदा ज़्यादा टैक्स दे रहा होगा, गरीब बंदा कम टैक्स दे रहा होगा। सर जी इसी 3 प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्सेशन की बेस पर कुछ काइंड्स हैं और उसमें सबसे पहली काइंड जो है वो क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल की बेस पर प्रोपोर्शनल टैक्स या फ्लैट टैक्स है। और इसमें वो कहता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट फिक्स रहेगा, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा लेकिन टैक्स रेट
फिक्स रहेगा, इनकम बढ़ रही है, टैक्स बढ़ा है, लेकिन उससे टैक्स रेट फिक्स है। ये कंपनीज पर जो इनकम टैक्स लगता है वो इस असूल के तहत लगता है। दूसरे नंबर पे आ गया था एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल कहता है जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना टैक्स दे, और इसकी एप्लीकेशन है प्रोग्रेसिव टैक्स। और प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, आप कहते हैं इनकम बढ़ रही है तो टैक्स तो बढ़ ही रहा है, लेकिन टैक्स रेट भी बढ़ रहा है, यानी इसमें इनकम बढ़ती है, टैक्स बढ़ता है और टैक्स रेट भी बढ़ता है। इंडिविजुअल और एओपी पे जो पार्टनरशिप पे जो टैक्स लगता है वो इस कानून के तहत लगता है। और तीसरे नंबर पे हमने कहा था रिग्रेसिव टैक्स, और रिग्रेसिव टैक्स में हमने बताया था कि जनाब इनकम बढ़ेगी, टैक्स फिक्स रहेगा, और टैक्स रेट उल्टा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनकम बढ़ेगी तो टैक्स फिक्स रहेगा और टैक्स रेट उल्टा कम हो जाएगा। इनकम बढ़ी, टैक्स फिक्स रहा, टैक्स रेट उल्टा क्या हो गया, कम हो गया। और इसकी एग्जांपल क्या है, सेल्स टैक्स। और सर समझ आ रही है, काइंड्स ऑफ टैक्सेशन में ये सारी बातें मैंने कल आपको बड़ी डिटेल में बताई थी भाईजान। इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया था ग्रुप्स में, सबके पास आ गया था। बाकी लोग जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो प्लीज़ आज ग्रुप में ऐड हो जाएं, ताकि अब जो भी चीज़ हो वो आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पर साथ शेयर कर दी जाए। मैं इंशाल्लाह अभी चूँकि शुरू के दो तीन दिन है मैं नहीं चेक करा, मेरी आदत है मैं आप लोगों के रजिस्टर ज़रूर चेक करता हूँ। और रजिस्टर चेक करने का मकसद ये होता है कि मुझे पता चले कि जो मैं बता रहा हूँ, जिस तरह मैं तैयारी करवाना चाह रहा हूँ कि आप लोग कर रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा है कि ये आप ड्रॉ करें, अगर ये पहले 2-3 दिन ना होते तो मैंने आपको कह लेना था कि रजिस्टर निकालें। आप अपने जो भी लोग पहले मुझसे पढ़ चुके हैं, जो भी इस वक्त पढ़े, उनसे पूछ लें कि मेरा शौक़ है कि मैं रूटीन में बच्चों का रजिस्टर चेक करता हूँ, निकालें, मैं ज़रा देखूँ ये आपने ड्रॉ किया या नहीं किया, जैसे मैं कह रहा हूँ। अब जब आप आ रहे हैं और क्लास ले रहे हैं और टीचर की बात सुन रहे हैं, तो जनाब जिस तरह टीचर कह रहा है उसको उस तरह करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा है। तो मैं जनरली इसी तरह पढ़ाते ही एकदम मैं कहूँगा कि भाई वीडियो पॉज करो और मैं आप लोगों को रजिस्टर देखने लग जाऊँगा। और सेम यही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ऑनलाइन वालों से भी कि उन्होंने भी ये सारी चीज़ें ऐसे ड्रॉ की हों। तो सर जी मेरी बात समझ आ रही है, ये बहुत ज़रूरी है। होम असाइनमेंट्स तो चेक होती हैं, लेकिन ये जो कराया होता है मेरी ख्वाहिश होती है कि ये भी आप लोग ज़रूर कर लें। लो सर, काइंड्स ऑफ टैक्सेशन की बात अगर मैं करूँ तो उसमें सबसे पहले आता है प्रोपोर्शनल या फ्लैट टैक्स, जिसमें हमने ये तो बात करी प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव की। अब आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज। सर जी टैक्स लॉज की खसूसियात क्या हैं? सबसे पहले तो ये एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन है, वॉलेंट्री नहीं है। दूसरा सर चेक की सूरत में, प्रोमिसरी नोट की सूरत में, किसी चीज़ की सूरत में टैक्स नहीं दे सकते, बल्कि आपको कैश की फॉर्म में देना पड़ेगा। इनकम बढ़े तो टैक्स बढ़ना चाहिए, जिसकी जितनी हैसियत उसके मुताबिक टैक्स देना चाहिए। टैक्स इनकम पे, ट्रांजैक्शन पे और प्रॉपर्टी पे लगता है। टैक्स एक्ट्स पे, राइट्स और प्रिविलेजेस पर भी लगता है। कौन टैक्स लागू करेगा? वो स्टेट टैक्स लागू करेगी जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो बंदा या उसकी प्रॉपर्टी फॉल कर रही होगी। और टैक्स को लागू कौन करेगा? लॉ मेकिंग बॉडी। हम जो काइंड्स ऑफ टैक्सेशन की बात कर रहे हैं ये इनकम और टैक्स रेट का मुकाबला है। इसमें इनकम और टैक्स रेट, इन दो चीज़ों का रिलेशन है असल में। सेल्स टैक्स बेसिकली सेल्स वैल्यू पर लगता है, रिटेल प्राइस पर लगता है। तो रिटेल प्राइस के हवाले से तो वो 18% फिक्स है, लेकिन वो इनकम के रिलेशन में फिक्स नहीं है। समझ आ रही है? ये असल बात थी। लो बहरहाल टैक्स लागू कौन करता है? एफपीआर लागू करती है। और अप्रूव टैक्स के कानून को अप्रूव कौन करता है? नेशनल असेंबली अप्रूव करती है। टैक्स लागू किया जाता है पब्लिक पर्पस के लिए एंड टू सपोर्ट द गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स। लें सर, ये सारी बातें थी जो आपके साथ डिस्कस हो गई। सर जी पहला आ गया फिस्कल एडिक्वेसी। अब प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम एक भाई ने कहा था, मैंने वैसे भी रिवाइज कराने ही थे लेकिन ज़रा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सर जी इसमें 4 बातें हैं। सबसे पहली बात है फिस्कल एडिक्वेसी,
یعنی فسکل کہتے ہیں مالی، ایڈیکویسی کہتے ہیں کافی ہونا. ٹیکس کا نظام ایسا ہونا چاہیے جس سے اتنا ٹیکس جمع ہو جائے کہ وہ کسی ملک کی ضروریات کے لیے کافی ہو. اچھا ٹیکس کا سسٹم وہ ہے، ساؤنڈ یعنی اچھا. اور اگر کسی ملک کو زیادہ مسائل درپیش ہیں تو ٹیکس کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ زیادہ ریونیو اکٹھا ہو جائے. اور اگر کوئی ملک چاہتا ہے عوام کو ریلیف دینا تو ٹیکس کا قانون ایسا ہونا چاہیے کہ ریونیو سکڑ جائے اور کم ہو جائے. یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 3 باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. پہلی بات یہ لکھی ہوئی کہ ٹیکس کے ریونیو باقی سارے فنڈز کے ساتھ اتنا ہونا چاہیے کہ ملک کے اخراجات پورے ہو سکیں. اور دوسری بات یہ لکھی ہوئی کہ ٹیکس کا ریونیو پھیل جانا چاہیے ملک کی ضروریات کے مطابق. اور تیسری بات یہ لکھی ہوئی کہ ٹیکس کا ریونیو سکڑ جانا چاہیے اگر ملک کی ضروریات کم ہیں. یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 3 باتیں لکھی ہوئی ہیں فسکل ایڈیکویسی میں. ایکویلٹی اور تھیوریٹیکل جسٹس میں وہ کہتا ہے ٹیکس لگنا چاہیے حیثیت کی بیس پہ، جس کی جتنی حیثیت ہے اس پر اتنا ٹیکس لگنا چاہیے. ایڈمنسٹریٹو فیزیبلٹی، ٹیکس کے سسٹم کو بہت اچھا مینیج کرنا چاہیے. یعنی ٹیکس ایسا نظام ایسا ہو جو کلیئر اور پلین ہو، سرٹن ہو. ٹیکس کا نظام میں لوگ ایسے ہونے چاہیے جو تعداد میں بھی کافی ہوں اور قابلیت ٹریننگ ویل ٹرینڈ بھی ہوں اور ایڈیکویٹ بھی ہوں. سر تیسری بات کنوینئنٹ ایز ٹو دا ٹائم اینڈ مینر آف پیمنٹ. سر کنوینئنٹ ہو یعنی آسانی ہو، آسان ہو. ٹیکس کو جس وقت پے کرنا ہے اس وقت پے کرنا، جو وقت ہے وہ آسان ہو اور جس طرح پے کرنا ہے وہ آسان ہو. not unduly burdensome to discourage business activity. Sir, not unduly burdensome to discourage business activity. ٹیکس unduly burdensome نہیں ہونا چاہیے کہ بزنس ایکٹیویٹی کیا ہو، ڈسکریج ہو. یار سمجھ آ رہا ہے؟ یہ ایڈمنسٹریٹو فیزیبلٹی تھا. اور کنسسٹنسی اور کمپیٹیبلٹی ود اکنامک گولز کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ٹیکس کا قانون اوور آل معیشت کی ڈائریکشن اور ٹیکس کے قانون کی ڈائریکشن سیم ہونی چاہیے. They should be in line, they should be consistent with the tax law, should be consistent with the economic goals and programs of the government. عام طور پہ بچوں کو یہ والی لائن میں تھوڑی دقت آتی ہے. which pertain to basic service intended for masses. masses کا مطلب ہے عوام الناس، عوام. وہ کہتا ہے وہ والے سارے گورنمنٹ کے پروجیکٹس اور گولز جو متعلق ہیں، جن کا تعلق ہے بنیادی سہولیات عوام کو دینے سے، وہ والے ساری چیزیں جو ہیں وہ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے ٹیکس لاؤز کے ساتھ. سر جی یہ 4 باتیں میں نے آپ کو پڑھا دی. ایک بار جلدی سے اس کو گو تھرو کر لیجئے، پھر میں آگے چلتا ہوں. اب آگے شروع کرنے لگا ہوں. سر جی اب اگلا جو ہمارا ٹاسک ہے وہ ہے ڈفرنٹ ٹیکسیشن لاز آف پاکستان میں. سر 2 طرح کے ٹیکس ہوتے ہیں، ایک ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے اور ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے. بڑی آسان سی ڈیفینیشن ہے. ڈائریکٹ ٹیکس وہ ٹیکس جو ڈائریکٹلی ٹیکس پیئر ایف بی آر کو جمع کراتا ہے، اور انڈائریکٹ وہ ٹیکس جو انڈائریکٹلی ٹیکس پیئر ایف بی آر کو جمع کراتا ہے. آپ نے سنا ہوگا انکم ٹیکس میں ہم ریٹرن فائل کرتے ہیں، گوشوارے بھرتے ہیں، گوشوارے جمع کرواتے ہیں. انکم ٹیکس میں کیا ہوتا ہے؟ گوشوارے پور کیے جاتے ہیں، گوشوارے جمع کروائے جاتے ہیں. تو یہ کون سا ٹیکس ہوتا ہے؟ یہ ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے جس میں ہم ایف بی آر کو ڈائریکٹلی ٹیکس جمع کرا رہے ہوتے ہیں. یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن انڈائریکٹ ٹیکس وہ ٹیکس ہوتا ہے جس میں ڈائریکٹلی ہم ایف بی آر کو ٹیکس نہیں جمع کرا رہے ہوتے. مثال لیجئے، سر آپ مارکیٹ سے جوس خریدنے گئے، جوس تھا 60 روپے کا، اس جوس کے اوپر قیمت لکھی ہوئی ہے 60 روپے اور لکھا ہوا ہے سیلز ٹیکس ہے 16 روپے. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ اگر اسے کہیں گے 60 روپے کا جوس ہے، 16 روپے ٹیکس ہے، پیچھے رہ گیا 44، یہ پکڑو تم 44 روپے مجھے جوس دے دو، میں ٹیکس خود ہی ایف بی آر کو جمع کرا دوں، کیا وہ بندہ یہ بات مانے گا؟ نہیں مانے گا. کیوں نہیں مانے گا؟ سر لا خود کہہ رہا ہے کہ تم انٹرمیڈری کو ٹیکس دے دو، ختم. اب ہم نے دکاندار کو ٹیکس دے دیا، وہ جانے اور اس کا کام جانے. تو انڈائریکٹ ٹیکس وہ ٹیکس ہے جو ٹیکس ہم کس کو جمع کراتے ہیں؟
इंटरमीडिएट को दे देते हैं कि तीसरे बंदे को दे देते हैं जो आगे एफबीआर को जमा कराता है। और डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो डायरेक्टली हम एफबीआर को जमा कराते हैं। यार मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर ये बात समझ आ गई तो थोड़ा सा हम डायरेक्ट टैक्सेस को डिटेल में पढ़ते हैं। वो कहता है आर टैक्सेस दैट आर डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट बाय द टैक्स पेयर, इट इज अ टैक्स अप्लाइड ऑन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन पर टैक्स अप्लाई होता है। डायरेक्टली कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, जैसे इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स और वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, टैक्स इज लेविड जनरली ऑन द नेट इनकम ऑफ द टैक्स पेयर earned during a tax year, computed by applying the specified tax rate as applicable to the respective taxpayer. सर, टैक्स, इनकम टैक्स कौन सा टैक्स होता है? ये वो टैक्स है जो लागू किया जाता है किस पर? नेट इनकम पर। किसकी? ऑफ अ टैक्स पेयर की। जो उसने कमाई होती है एक साल में, और उस पर कैसे टैक्स लगाते हैं? स्पेसिफिक टैक्स रेट अप्लाई किए जाते हैं। इनकम इज क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग हेड। इनकम को क्लासिफाई किया जाता है फॉलोइंग हेड्स में। सर, सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन है और अदर सोर्स है। इन सारे हेड्स में इनकम टैक्स को क्लासिफाई किया जाता है, यानी इनकम को तकसीम किया जाता है इन हेड्स में। सैलरी क्या है? जो नौकरी करता है वो अंडर दैट, वो जो पैसे कमाता है वो अंडर दैट सैलरी आते हैं। जो प्रॉपर्टी किराए पर देता है वो सारी इनकम अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आती है। जो प्रॉपर्टी, जो कारोबार से पैसे कमाता है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस आता है। जो शेयर्स को बेचकर पैसे कमाता है वो कैपिटल गेन में आता है। और जो ऊपर वाले इन सोर्सेज के अलावा किसी और सोर्स से पैसे कमाता है वो अदर सोर्स में आ जाता है। सर जी, अगर मैं आपको बताऊं तो ये पूरे चैप्टर्स हैं। सैलरी चैप्टर नंबर 5 है, प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 6 है, बिजनेस चैप्टर नंबर 7, 8 है, कैपिटल गेन चैप्टर नंबर 9 है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर नंबर 10 है। तो भाई ये पूरे चैप्टर्स हैं, इसको बड़ी डिटेल में हमने पढ़ना है। हमारे 65 मार्क्स का पेपर इसमें से आता है। 60 से 65 नंबर जो है वो इनकम टैक्स में है। तो ये तो हमने बड़ी डिटेल में पढ़ना है, और अगले शायद 2 माह हमने इनकम टैक्स ही पढ़ना है। और कैपिटल वैल्यू टैक्स क्या है? सर, कैपिटल वैल्यू टैक्स जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस पे लगता है, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर पर या राइट की ट्रांसफर पर जो टैक्स लगता है वो कैपिटल वैल्यू टैक्स होता है। तो भाई बहुत अच्छा सवाल है, और मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स सारा पढ़ाने के बाद आपसे ये सवाल पूछूंगा। समहाउ आपने ये सवाल अभी पुट किया है तो फिर इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। भाई का सवाल आप लोग भी सुने। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी को काट, सैलरी पे टैक्स काट के एम्प्लॉय को सैलरी देता है, यस और नो? सर जी, इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं इससे तो इनडायरेक्टली टैक्स एम्प्लॉयर जमा करवा रहा है एम्प्लॉय का टैक्स एफबीआर को, तो ये डायरेक्ट टैक्स कैसे हुआ? इसका जवाब ये है कि सर, उस सारी इनकम पे टैक्स जमा कराने का जिम्मेदार असल में एम्प्लॉय है। सर जी समझ आ रही है? एम्प्लॉय इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू फाइल हिज रिटर्न। तो इस वजह से सैलरी डायरेक्ट टैक्स में आता है। लेकिन सेल्स टैक्स में जब आपने किसी को सेल्स टैक्स दे दिया तो कभी मुड़ के जाके अगले दिन उससे पूछा कि भाई मैंने कल तुमसे जूस खरीदा था, 16 रुपये जमा करा दिए थे? यानी उस केस में, इनडायरेक्ट टैक्स के केस में यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कि वो टैक्स आगे जा रहा है या नहीं जा रहा। जबकि डायरेक्ट टैक्स के केस में अल्टीमेटली आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आप सारा हिसाब अपना एफबीआर वालों को दें कि मेरी कितनी इनकम थी, इस पे कितना टैक्स बनता था, मेरे एम्प्लॉयर ने कितना टैक्स जमा कराया और कितना बाकी टैक्स है जो मैं आपको जमा कराता हूँ। तो सारा हिसाब कौन दे रहा है इनकम का?
एम्प्लॉय या वो टैक्स पेयर खुद दे रहा है, ये डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन जहां पर आपने पैसे दे दिए, आपने सेल्स टैक्स अदा कर दिया, कोई हिसाब दिया है कभी आज तक कितनी चीजें खाते हो, कितना टैक्स अदा किया है, उससे जाके कभी पूछा कि भाई तुमने आगे दिया था या नहीं दिया था? यार मेरी बात समझ आ रही है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। सर समझ आ रही है? तो भाई द वन जिसमें द पर्सन द टैक्स पेयर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कि यार वो टैक्स एफबीआर को पहुंचा या नहीं पहुंचा, वो डायरेक्ट टैक्स है। और इनकम टैक्स उसकी मिसाल है, सैलरी भी उसकी मिसाल है। ठीक हो गया सर? तो भाई ये इनकम टैक्स आ गया, और नीचे आ गया कैपिटल वैल्यू टैक्स, जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस भी होता है, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर, यहाँ राइट्स के ट्रांसफर पर। अब आ गया दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कि टैक्स पे डायरेक्टली एफबीआर को नहीं देता, बल्कि थ्रू इंटरमीडियरी देता। यार मेरी बात समझा रही? किसी तीसरी पार्टी के जरिए टैक्स एफबीआर को पहुंचता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन याद रखना, 100 रुपये की चीज़ पर जब 18 रुपये का टैक्स लग जाता है और आप 118 रुपये की वो चीज़ खरीदते हैं, तो वो 18 रुपये का बोझ उस बायर पे आता है, उसके कंधे पे आता है। यार मेरी बात समझ आ रही? तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसकी वजह से अल्टीमेटली प्राइसेस बढ़ जाती हैं, और उसका सारी प्राइसेस बढ़ने का बोझ किस पर आ जाता है? टैक्स पेयर पे आ जाता है। तो भाई इसलिए दो जुमले लिखे हुए हैं, एक ये कि इंटरमीडियरी के जरिए पे किया जाता है, और दूसरा ये कि अल्टीमेट इकोनॉमिक बर्डन किस पर आता है? टैक्स पेयर पे आता है। कस्टम ड्यूटी, goods imported and exported from Pakistan are liable to rate of custom duties as prescribed in Pakistan custom tariff. goods import करें या export करें पाकिस्तान से, तो वो liable होते हैं to rates of custom duties as prescribed in Pakistan custom tariff. पाकिस्तान custom tariff में, अच्छा जी, एक भाई ने अच्छा सवाल पूछा है, मुझे भी मौका मिल गया एक बात एक्सप्लेन करने का। सर जी, टैक्स, टैरिफ, ड्यूटी, लेवी, इन चारों का एक ही मतलब होता है, वो होता है टैक्स। ठीक हो गया सर? सर जी, तो भाई लेवी का लफ्ज़ लिखा हो, ड्यूटी का लफ्ज़ लिखा हो, टैरिफ का लफ्ज़ लिखा हो, टैक्स का लफ्ज़ लिखा हो, सब का मतलब टैक्स ही होता है। कस्टम ड्यूटी क्या है? इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। कितना टैक्स लगता है? पाकिस्तान कस्टम टैरिफ एक प्रॉपर कानून है जिसमें बताया गया किस पर कितना टैक्स लगना है। अलबत्ता याद रखना, लग्जरी आइटम पर हाई टैक्स लगेगा। वो आइटम जो ऑलरेडी पाकिस्तान में बन रही हैं उस पर हाई टैक्स लगेगा, जो लेस एसेंशियल है उस पर हाई टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर कम टैक्स लगेगा। क्यों जी? सर, प्लांट एंड मशीनरी पाकिस्तान में आएगी, लेबर लगेगी, मशीनें लगेंगी, रॉ मटेरियल आएगा, प्रोडक्शन होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो प्लांट एंड मशीनरी से इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, फायदा है। तो प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करने पर कम टैक्स लगता है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने पर कम टैक्स लगता है। मैं रुई मंगवाता हूँ चाइना से, रुई से इधर धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, कपड़े से स्टिचिंग होती है तो शर्ट बनती है। अब बताओ, रुई पे कम टैक्स लगना चाहिए या बनी बनाई शर्ट खरीदूं तो उस पर कम टैक्स लगना चाहिए? रुई पर, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, मुल्क में फायदा हो रहा है। सर जी, हायर टैक्स रेट आर लेविड ऑन लग्जरी आइटम एज वेल एज लेस एसेंशियल गुड्स। द इम्पोर्ट टैरिफ ऑन इंडस्ट्रियल प्लांट एंड मशीनरी एंड रॉ मटेरियल इज लोअर देन दोज ऑन कंज्यूमर गुड्स। सर जी, जो इम्पोर्ट का टैरिफ होता है ऑन इंडस्ट्रियल प्लांट एंड मशीनरी एंड रॉ मटेरियल इज लोअर देन दोज ऑन कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स पे टैक्स ज़्यादा लगता है और रॉ मटेरियल या प्लांट एंड मशीनरी पर टैक्स कम लगता है रिलेटिवली। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सर जी CFAP में ये आपके कोर्स में है, लेकिन
कैफ में, ये आपके कोर्स में नहीं है, FED यानी फेडरल एक्साइज ड्यूटी, इट इज लेविड ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये लागू होती है लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स पर। एक्साइज ड्यूटी जो है ये आपके CFAP के सिलेबस में, यहाँ पर तो बस इसने यही 4 लाइनें लिखी हैं और यही हम आपको पढ़ाएंगे। सर फेडरल एक्साइज ड्यूटी को FED कहा जाता है, ये सेलेक्टेड नंबर ऑफ गुड्स पे लगती है। किस पर लगती है? ये लगती है तकरीबन 16 आइटम्स हैं मेनली। अगर मैं आपको बताऊं, कुछ गुड्स पर भी लगती है और कुछ सर्विसेज पर भी लगती है। अगर गुड्स की बात करूं तो सिगरेट पर, सीमेंट पर, तंबाकू पर लगती है, और अगर सर्विसेज की बात करूं तो बैंकिंग सर्विसेज पर, फ्रेंचाइज पर, इन सब चीजों पर लगती है। सर जी आम तौर पे टैक्स लगता है अमाउंट के ऊपर, लेकिन यहाँ कीमत के ऊपर, लेकिन फेडरल एक्साइज ड्यूटी कुछ चीज़ों पर वैल्यू की बेस पर लगती है, कुछ चीज़ों पर रिटेल प्राइस की बेस पर लगती है, कुछ चीज़ों पर वेट की बेस पर लगती है और कुछ चीज़ों पर क्वांटिटी की बेस पर लगती है। सर टैक्स है हमारे दिन में, ये कहता है 100 रुपये की चीज़ है 18 रुपये का टैक्स लगेगा 18% के हिसाब से, लेकिन बाजू का 50 रुपये की किलो है तो फी किलो 5 रुपये टैक्स है, ऐसे भी हो सकता है। बाजू का एक सिगरेट की डिब्बी पर 100 रुपये का टैक्स है तो 100 डिब्बियाँ हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 टैक्स लगेगा। तो बाज़-औक़ात क्वांटिटी की बेस पर भी लगता है, बाज़-औक़ात वेट की बेस पर भी लगता है, बाज़-औक़ात वैल्यू की बेस पर भी लगता है, बाज़-औक़ात रिटेल की बेस पर भी, रिटेल प्राइस की बेस पर भी लगता है। अलबत्ता एक्सपोर्ट जो है उस पर 0% FED लगती है। सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स इज लेविड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एट द रेट ऑफ 18%। सेल्स टैक्स जो है वो वेरियस स्टेजेस पर लगता है। All goods imported into Pakistan payable by the importers। सेल्स टैक्स हमारे सिलेबस का 20 से 30% हिस्सा, पिछली बार पूरे 30 नंबर का पेपर आया और हम हमेशा उसको 26 से 30 के दरमियान ही लेके चलते हैं। 18% टैक्स लगता है सेल्स टैक्स, किस पर? इंपोर्ट करने पर भी लगता है, सप्लाईज पर भी लगता है। किस तरह कितना टैक्स लगेगा इंशाल्लाह सारा आपको पढ़ाना है। यहाँ पर बस इनडायरेक्ट टैक्स के वाले से इतना ही जरूरी है कि 18% लगता है, इंपोर्ट पर भी लगता है और सप्लाईज पर भी लगता है। सर जी एक बार डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जल्दी से रीड कर लीजिए। बैंक का आता है ना, फिर बैंक आके उसको जमा कराएगा। सर जी ये सारी बातें मैंने आपके साथ कर दी। अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के टैक्स के बारे में एक दो बातें और करता चलूं, गर्चे वो आपकी किताब में नहीं है ना ICAP की किताब में है। उसमें जो पहली बात है वो ये है कि डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट टैक्स होता है उस पे टैक्स को कलेक्ट करने का खर्चा ज़्यादा नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स में हम इकोनॉमी ऑफ टैक्सेशन को अचीव करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स इज एक्सपेंसिव टू कलेक्ट। ये बात किताब में नहीं लिखी हुई, लेकिन ये बात आपको मैं बता रहा हूँ, आपके नॉलेज में होनी चाहिए। डायरेक्ट टैक्स जो है इसमें इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन अचीव होती है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स इज एक्सपेंसिव टू कलेक्ट। दूसरी बात करूं, डायरेक्ट टैक्स में टैक्स एवेजन का ज़्यादा रिस्क होता है, यहाँ पर लेस टैक्स एवेजन, टैक्स चोरी नहीं होती। टैक्स चोरी का रिस्क डायरेक्ट टैक्स में ज़्यादा है, इनडायरेक्ट टैक्स में कम है। भाईजान जब मैं जूस खरीदने जाऊँगा और मुझे मिलेगा ही जूस
ٹیکس شامل کر کے تو میں اس میں ٹیکس چوری نہیں کر سکتا، وہاں پہ ٹیکس چوری کرنے کے چانسز کم ہیں۔ لیکن اگر میں اپنی انکم ایف بی آر کو شو کر رہا ہوں، 10 کروڑ انکم ہے، 10 لاکھ شو کر دیتا ہوں، تو بھائی جان ٹیکس ایویژن ڈائریکٹ ٹیکسز میں زیادہ ہوتی ہے اور انڈائریکٹ ٹیکسز میں کم ہوتی ہے۔ سو اگر 3 مارکس کا وہ آپ سے پوچھے ڈفرینسز، تو بھائی آپ کے پاس ایک تو یہ ڈفرینس ہے، ایک تو ڈیفینیشن کا ڈفرینس آ گیا۔ ڈیفینیشن جو ہے دونوں کی مختلف ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ جو ڈفرینس آنا ہے وہ کس چیز کا ہے؟ اس کی ایگزامپلس، ڈائریکٹ ٹیکس کی ایگزامپلس علیحدہ ہیں اور انڈائریکٹ ٹیکس کی علیحدہ ہیں۔ ایک ڈیفینیشن آ گیا اور ایک ایگزامپلز آ گیا۔ تو بھائی 1 2 3 4، اگر یہ 8 نمبر کا بھی سوال آ جائے جو کہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 4 نمبر کا ہے گا، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس میں فرق اگر آ جائے تو بھائی پہلے سٹیپ پہ ڈیفینیشن لکھو، دوسرے سٹیپ پہ دونوں کی ایگزامپلس لکھو، تیسرے سٹیپ میں یہ بتاؤ کہ ڈائریکٹ ٹیکس میں ٹیکس ایویژن زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو انڈائریکٹ ٹیکس۔ چوتھے نمبر پہ لکھو اکانومی آف کلیکشن ڈائریکٹ ٹیکس میں اچیو ہو پاتی ہے لیکن انڈائریکٹ ٹیکس از ایکسپینسو ٹو کلیکٹ۔ اور سر جی سمجھ آ رہی ہے؟ لو سر یہ ساری باتیں تھی میں نے آپ کے ساتھ کر دی۔ اب ہمارا رہ کیا گیا ہے؟ سر جی صرف یہ ہسٹری آف ٹیکسیشن والا پوائنٹ ہے، یہ رہ گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ پریکٹس کویسچن ہے یہ کراؤں گا اور کل پاس پیپر کراؤں گا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ کل جو ہے انشاءاللہ ہماری کلاس 3:30 پہ ہوگی، کل فرائیڈے ہے، ہماری کلاس 3:30 پہ ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سر یہ جتنا آج تک آپ کو پڑھایا ہے، بلکہ آپ کو یہ کہوں گے جتنا آج پڑھایا ہے سارا ہی پڑھا دیا نا، اچھا سا تیار کر کے آئیے گا۔ کل میں نے آپ سے کلاس میں اس کو ہم نے پاس پیپر کرنے، انشاءاللہ سارے پاس پیپر کروں گا، تو یہ آبجیکٹیو آف ٹیکس لاس وغیرہ یہ کلاس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جا رہے ہوں گے۔ کل سارے پاس پیپر سب کرا کے کل میں نے چیپٹر وائنڈ اپ کر دینا ہے، پرسوں سیٹرڈے والے دن اس کا ٹیسٹ ہونا ہے۔ اور سر سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک اچھے طریقے سے تھورولی چیپٹر پڑھایا بھی، ریوائز بھی کرایا، انشاءاللہ کل اس کو کمپلیٹ بھی کراؤں گا، سارے پاس پیپر بھی کراؤں گا اور پھر اس کا ٹیسٹ بھی لوں گا۔ سر آپ اس کو اچھے طریقے سے تھرو آؤٹ اس طرح پوری کتاب کر لیں تو انشاءاللہ اب پیپر پاس کرنا مشکل نہیں ہے۔ لو سر آج کے لیے اتنا ہی تھا جی۔ ڈفرینس سر ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس کے ڈفرینسز، اس میں سب سے پہلے ڈیفینیشن لکھیں، دوسرے سٹیپ پہ ایگزامپل لکھیں، تیسرے سٹیپ پہ ڈائریکٹ ٹیکس میں ٹیکس ایویژن ہوتی ہے جو کہ انڈائریکٹ ٹیکس میں کم ہوتی ہے، اور ڈائریکٹ ٹیکس میں اکانومی آف کلیکشن کو اچیو کر پاتے ہیں جبکہ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ ایکسپینسو ٹو کلیکٹ ہوتا ہے۔ ڈن ہو گیا سر جی؟ ڈن ہے سر؟ ڈن ہے سر؟ تھینک یو سر، آج کے لیے اتنا ہی تھا، اللہ حافظ۔